बिकॉज आई रिमेम्बर 2015 या उसके पहले जब मैं आर्टिकलशिप में था, आई वाज डूइंग दिस। या तो कॉपी पेस्ट करना है या फिर पूरा बैठ के बनाना है, विच यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली हमने सुना है स्पेशली सीए इंडस्ट्री में कि यार लोगों को काम आता है बट प्रेजेंट करना नहीं आता है। दिस इज द एफिशिएंट टूल टू मेक दैट रियलिटी। तो मेरा आरओयू असेट जो है वो उसने डेबिट किया है, तो एक असेट रिकॉग्नाइज कर लिया और सामने लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की है। सो अनमोल, लेट्स गो इनटू द पावर ऑफ चैट जीपीटी। तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि चैट जीपीटी किस तरह से यूज हो सकता है बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग को कैप्चर करने के लिए इन अ प्रोफेशनल वे। बट वहीं तक बात नहीं रुकती है। ऑडिट एरियाज में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर आप कोई भी काम करते हैं, चैट जीपीटी यूज आ सकता है टू मेक ऑडिट मेमोज, जो कि बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है आपकी ऑडिट प्रोसेस का। और उसके लिए हमारे साथ फिर से अनमोल है आज इस एपिसोड के अंदर, जहां पे वो एक्सप्लेन करने वाला है हाउ ही हैज डन यूजिंग चैट जीपीटी फॉर क्रिएशन ऑफ अमेजिंग ऑडिट मेमोज। सो अनमोल, लेट्स गो इनटू द पावर ऑफ चैट जीपीटी एंड बात करते हैं हमारी ऑडियंस से किस तरह से ऑडिट मेमो चैट जीपीटी से बन सकता है। बिल्कुल सर। So here I want to take two use cases where you can prepare detailed memos and applicability of laws or accounting standards, in fact, for your audit, and how specifically to your client, catering to that industry and client, you can prepare your memos and see, how applicability of a law can be demonstrated in a professional way as a part of your audit file. So the first example which I would like to take is one of the most classic examples is Caro 2020 reporting. So this is a very crucial reporting which is applicable to a set of clients, not all of them. And here I have taken a use case wherein one of my client is a small company. I have identified that thing, and it Caro 2020 is not applicable to it, but I wish to demonstrate it in a professional way so that no one questions my work as an auditor, like what I have done to, actually say ki, yes, I'm not reporting on Caro. So I have taken an example of a company. I have mentioned its share capital, its annual turnover, and now catch here is ChatGPT. Like I use the free version. So in the free version, the last news or update I would say ChatGPT 3.5 knows is till September 2021, and small companies definition was changed in September 2022. So naturally, we would not know the latest law, but I wish to put it as a part of my memo so that it brings out the correct picture. So what I have done, apart from my example, I have also taken the extract from that law so that it includes that specific text in the memo itself. So what I'll do is I have written a prompt here which I have used on my clients. So I've just a simple prompt, prepare a detailed write-up on non-applicability of Caro 2020 on my audit client XYZ based on information. And then down I have the information which I told. So I'll just copy this thing and I'll paste it over here. So this just includes my prompt, my company client details, and the extract from that updated amended law. So I'll put it. Yeah. So firstly, it is also giving me what is Caro 2020 reporting. So that looks quite professional as to what exactly is the law and how is it applicable or not applicable. So first, if we see, it is giving me the amended definition that I had picked up. So it is writing it in a formal way. And then it is also giving me where small companies are excluded from the specific definition. And in the end, it is also giving me a conclusion why my example, Ajkal India Private Limited पे small company, since it is a small company, Caro 2020 is not applicable. So ब्रिलियंट, आई थिंक इट्स रियली ब्रिलियंट बिकॉज आई रिमेम्बर 2015 या उसके पहले जब मैं आर्टिकलशिप में था, आई वाज डूइंग दिस। या तो कॉपी पेस्ट करना है या फिर पूरा बैठ के बनाना है, विच यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट्स exactly, sir. यूज। And आई थिंक कॉपी पेस्ट में वही एज आई सेड एक एरर ये होता ही है कि कितना भी प्रूफ रीड कर लो शायद कभी ना कभी कोई चीज पुराने क्लाइंट की रह जाती है। तो वो नेक्स्ट ईयर जब वापस ओपन होता है तब रियलाइज करते हैं कि अच्छा हमने ये गलती कर दी थी। तो टू अवॉइड दैट थिंग आई थिंक चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड इन दिस वे, जहां पे वो मुझे लॉ भी बता रहा है क्या है, उसका अमेंडेड डेफिनेशन भी उसने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद में मेरे स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर उसकी एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी भी बता दी विथ प्रॉपर लॉजिक।
So this helps me explain it to my senior as a part of review कि मैंने क्या homework किया था before concluding on this thing. So here is something which ChatGPT has proved to be helpful for me. आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल बिकॉज कई लोग होते हैं जो काम अच्छा कर लेते हैं बट अपने सीनियर को बता नहीं पाते हैं कि कितना काम किया है या किस तरह से वो काम किया है। बट चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो जनरली हमने सुना है स्पेशली सी इंडस्ट्री में कि यार लोगों को काम आता है बट प्रेजेंट करना नहीं आता है। दिस इज द इफिशिएंट टूल टू मेक दैट रियलिटी कि आप अपने काम को करो अच्छे से बट साथ में प्रेजेंट भी उसको अच्छे से करो, जैसा कि अनमोल ने बताया हमें। राइट सर, एंड ऐसा बहुत बार होता है कि हम नए आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं या कोई बड़ी फर्म एकदम True. न्यू भी है वहां पे, तो हमें शायद कोई हैंड होल्डिंग देने के लिए होता नहीं है। सो आई थिंक इन दैट केस हमारे डिलीवरेबल्स को अच्छा बनाने के लिए साथ ही साथ एक इम्प्रेशन सेट करने के लिए वी कैन यूज दिस। और यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैंने चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज किया, आई डिडंट इवन टेक अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बट स्टिल मैनेज टू प्रिपेयर दैट मेमो। जस्ट दैट मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया था गूगल से, वो लॉ अपडेट लॉ ले लिया एंड इसको दे दिया, एंड इट प्रेजेंटेड इट एंड इंक्लूडेड इट एज अ पार्ट ऑफ मेमो। सो आई डोंट नीड टू डू एनी मैनुअल वर्क आफ्टर दैट। ट्रू, दैट्स सो गुड आई थिंक। सो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत हेल्पफुल था, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपको अनमोल के लिए, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट ही कैन आंसर फॉर यू। डेफिनेटली। नेक्स्ट सेक्शन आई थिंक अनमोल। Yeah. So one more thing, which where I used ChatGPT is applicability of an accounting standard. So a lot of companies, if you see, are in the phase wherein they are transitioning from accounting standards to Indian accounting standards or IFRS, and a lot of us do not know the practical applicability of IFRS, and to understand कि और प्रैक्टिकली किसी स्टैंडर्ड को पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज हमें इंटरप्रेट तो करना ही, साथ ही साथ हमारे क्लाइंट का अप्लाई भी करना है। सो व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड चैट जीपीटी टू राइट अ सिंपल राइट अप ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ IFRS 16 ऑन माय क्लाइंट, एंड मैंने उसको स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए जो मेरे क्लाइंट से रिलेवेंट है। सो आई टोल्ड, मैंने मेरा क्लाइंट का नाम बता दिया, आई टोल्ड देम कि उनके एयरक्राफ्ट, सो आई टोल्ड इट इज इनटू एयरलाइंस एंड इट लीजेस एयरक्राफ्ट, तो मुझे IFRS 16 का एप्लीकेशन उसके ऊपर देखना है। तो मैंने उनको ड्यूरेशन बता दिया जो मैंने शायद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आइडेंटिफाई किया। मैंने उसी में से ये बता दिया कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, होता है एयरक्राफ्ट। सो ये स्टैंडर्ड जो चीजें मांगता है नॉर्मली, उससे रिलेटेड मैंने दे दिया कि लेजर कैन नॉट रिप्लेस द एयरक्राफ्ट, ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द लेजी, उसका ओवरऑल का लायबिलिटी और मंथली लीज पेमेंट। सो मैंने बहुत सिंपल 7 या 8 पॉइंटर्स उसको बता दी, जिसके बेसिस पे नाउ इट विल गिव मी अ डिटेल राइट अप। सो दिस द लाइन आई हैव हाइलाइटेड इन ब्लू इज द prompt which I use. सो मैंने सिंपली मेरा प्रॉम्प्ट दे दिया और मेरे क्लाइंट से रिलेवेंट सारी चीजें उसको बता दी। एंड मैं इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी वो मुझे बताएगा, बट आई यूज इट एज अ पार्ट ऑफ माई सेकेंड आउटपुट। सो इफ वी सी, उसने मुझे IFRS का समरी तो दिया ही, उसने ये भी बता दिया कि IFRS 16 इज द न्यू स्टैंडर्ड विच हैज रिप्लेस्ड IAS 17। सो दैट इज समथिंग जो मैंने मेरे प्रॉम्प्ट में कहीं नहीं डाला था, बट चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया, विच इज अ रियली गुड पार्ट। उसके बाद मैंने मेरे जो अरेंजमेंट्स है क्लाइंट रेलेवेंट वो बताए थे, तो उसने उसको अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करके बता दिया कि क्या समरी है। एंड उसके बाद एप्लीकेबिलिटी बताई है उस स्टैंडर्ड की टू माय रेलेवेंट क्लाइंट। सो इफ वी सी, इट इज यूजिंग माय क्लाइंट्स नेम एवरीवेयर। सो इट शोज कि हाँ, उसने उसी रेलेवेंट इंडस्ट्री, उसी रेलेवेंट क्लाइंट के ऊपर सब कुछ मुझे बताया है। And finally, I have a conclusion in hand ki how is it applicable, and this memo can go as a part of my audit file directly without any manual work. So true. And I think one of the important thing is to consider आपको कोई भी important जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है चैट जीपीटी, बिकॉज जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया है। सेकंड चीज, जो भी चैट जीपीटी दे रहा है आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस। हो सकता है चैट जीपीटी से भी कोई गलती हो, बट यू डोंट वांट टू रिलाई एंटायरली ऑन चैट जीपीटी। यू अग्री ऑन दैट अनमोल? Very true, sir. I think proof reading is better. वो जो आउटपुट है हम लेंगे तब प्रूफ रीड कर लेना बेटर है। मोर और लेस इन्फॉर्मेशन सही रहती है, बट हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन डू अ फ्यू एडिशंस एंड डिलीशंस एज यू लाइक, so that is always helpful, and also you have a confidence on what output you are having and you will be putting it forward. So that is there. Now just as a step two, out of curiosity मैंने जब ये चीज की थी तो मैंने फिर बोला
कि हेल्प मी ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर 0 एंड ईयर 1। सो मेरे को जब लीज आइडेंटिफाई हुई है इनिशियल फेज में वो, और नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी वो आउटपुट चाहिए। तो इफ यू सी उसने मुझे प्रॉपरली अकाउंटिंग एंट्रीज बता दी, इनिशियल रिकग्निशन पे क्या होगी, मेरी मंथली लीज पेमेंट की एंट्री क्या होगी, और ईयर 1 के एंड पे क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आएगी। So based on this, when you are auditing this area leases at your client place, you can use this to identify कि हाँ correct हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो then you can delve into that कि ये exactly different क्यों जा रहा है। सो बाय द वे अनमोल, ये फॉर्मूला करेक्ट है? तुमने चेक किया है? हाँ सर, मैंने ये अकाउंटिंग एंट्रीज चेक की थी एंड इट इज गोइंग करेक्ट, बिकॉज मेरा जो इनिशियल फेज इफ आई टॉक अबाउट इट, तो मेरा आरओयू असेट जो है वो उसने डेबिट किया है, तो एक असेट रिकग्नाइज कर लिया और सामने लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज की है। और मेरा जैसे जैसे मेरी मंथली लीज पेमेंट जा रही है, इट इज रिड्यूसिंग माई लायबिलिटी एंड मेकिंग अ पेमेंट ऑफ बैंक और कैश। नाउ after 1 year, it is also giving me entries for amortization expense of that asset, इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी एंट्री आ गई है, और वापस मंथली लीज पेमेंट की एंट्री जो मेरी ईयर ऑन ईयर रहती है वो भी वो मुझे बता रहा है। इसके बाद में ये जो एंट्री है ये मेरी ईयर 1 में नहीं आती है। दिस इज यू नो ओवरऑल विच आई हैव सेड कि आफ्टर 30 years होने वाला है, बट उसको अगर अक्रू करना है, मुझे प्रोविजन बनाना है विच माइट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर योर क्लाइंट, सो वो भी उसने मुझे बता दिया, सो दैट यू कैन सी। एंड इफ यू सी, चैट जीपीटी ने बहुत ही स्मार्टली मुझे लास्ट में ये भी बताया, प्लीज नोट दैट द एक्चुअल जर्नल एंट्रीज में वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द लीज। So it is also saying that you cannot, directly take it on face. You'll need to just once go through and see how it can be used for your deliverables. So that is quite helpful. एग्जैक्टली तो चैट जीपीटी पे आपको भरोसा पूरी तरह से नहीं करना है, एंड आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास उस चीज की नॉलेज है। अगर आप कोई चीज की नॉलेज नहीं रखते और आपको सिर्फ लगता है चैट जीपीटी इज माय गुड फ्रेंड और उस सभी चीज में मेरी हेल्प करेगा, आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन। तो आई थिंक ये काफी अच्छा एप्लीकेशन था ऑडिट मेमो बनाने के लिए, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑडिट के अंदर क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। Right, sir. Yes, I think ChatGPT पे I won't say trust, but yes, use it to your benefits. जितना benefit आप ले सकते हो, जितना time save कर सकते हो, जितना smartly work कर सकते हो, it is better. Yeah, I think that's really good. Now, is there anything, Anmol, जो तुम ऐड करना चाहते हो इस वीडियो में before we conclude? Sir, I think I don't have any other use cases to add, but I think जिस तरह से हमने examples देखे, we can always use it for other purposes also. और ट्रायल एंड एरर अभी मैं भी कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इवन पीपल कैन ट्राई इट इन देयर वर्क, एंड आई थिंक इट कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर देम। Absolutely. And in case you also have some creative ideas, please feel free to put in the comment section ताकि बाकी लोग आपसे सीख पाए and हम भी देख पाए how you are applying the chat GPT into your own life and your professional career. Thank you so much Anmol for taking your time and share करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ जो अपने डे टू डे काम के अंदर चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। Thanks a lot, sir, for giving me this opportunity to share my ideas with you and your audience. And it was really great speaking to you and sharing what I had with me. Well done Anmol, keep thriving and enjoy. Bye bye, tata. Thank you, sir. Bye.